Good morning, class. From today, we are going to start a new topic, that is potentiometer. The word comes from potential. The word potentio comes from potential and meter, means a meter which is used to measure potential difference. Okay, so it is a device which is used to measure potential difference between two points in an electric circuit. लेकिन यहाँ पर एक हमने वर्ड यूज किया है एक्यूरेटली, क्योंकि हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए ऑलरेडी एक डिवाइस है दैट इज नोन एज वोल्ट मीटर, बट स्टिल वी आर हैविंग पोटेंशियोमीटर. सो सबसे लास्ट में हम यही डिस्कस करेंगे दैट व्हाई डू वी प्रेफर पोटेंशियोमीटर फॉर मेजरिंग पोटेंशियल डिफरेंस ओवर वोल्ट मीटर. क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी वोल्ट मीटर है, लेकिन फिर भी हम किसका यूज कर रहे हैं, पोटेंशियोमीटर का यूज कर रहे हैं. तो यहाँ जो भी चीज हिडन है वो किस वर्ड में है, accurately. Okay, so obviously some kind of inaccuracy is there while we measure potential difference using voltmeter. So potentiometer, it is a device which is used to measure potential difference between two points in an electric circuit accurately. Okay, so next we will see the construction. A potentiometer, it is a very simple device. A potentiometer, it consists of a long wire whose area of cross section is uniform. This is the compulsory condition, that area of cross section must be uniform. Generally it is made up of constantan or magnin. Constantan और magnin को हमने use किया है because of its temperature dependency, temperature independency of resistivity. Resistivity never depends on temperature, that is why we prefer constantan or magnin. Okay, now we are having a long wire, so it is stressed or fitted on a wooden board. Now length of wire पोटेंशियोमीटर के लिए कितनी हो सकती है, it may be 1 meter, 4 meter or 10 meter wire. Okay, so in laboratories generally we will be having 10 meter long wire potentiometer, but this 10 meter is very long length. So how can we fit 10 meter long length wire on a wooden board? For that what we will do, that if length of wire is more than 1 meter, then it is fitted on wooden board in parallel 1 meter lengths. हम यहाँ पर 1 मीटर की 10 लेंथ्स ले लेंगे and they are connected in series with thick copper strips. 1 मीटर की जो 10 लेंथ है पैरेलल, इनको हम थिक कॉपर स्ट्रिप से कनेक्ट कर देंगे इन सीरीज. ओके, जैसे हम सेल्स के लिए करते हैं, ईएमएफ बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, सेल्स को सीरीज में लगाते हैं. सिमिलरली लेंथ को इंक्रीज करने के लिए भी हम क्या करते हैं, 10 वायर्स को हम सीरीज में कनेक्ट कर देंगे, सो इट विल बिकम 10 मीटर लेंथ वायर. ओके, ए मीटर स्केल इज फिटेड ऑन बोर्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ लेंथ. A sliding key is provided to make connection at any point on this wire. Sliding key होती है. Now you can see this is the construction. ये एक 4 मीटर वायर ब्रिज है. A is the starting point. This is 1 meter length wire. This is another 1 meter length wire. So just to join them in series, we use a thick copper strip. Thick copper strip do not provide any resistance because it is thick and it is made up of copper. Okay. Another again, this is third length. Again, to connect second wire with third, we have a thick copper strip, and then third wire को fourth wire से connect करने के लिए again we have a thick copper strip. Same arrangement is used for 10 meter wire potentiometer. So but in laboratories generally we have 10 meter wire potentiometer. It is made up of constant ton, ये N है. A and B are N terminals, and this is the meter scale for measuring length of wire. Okay, so construction will be in this way. हाँ, एग्जाम में ये चीज ध्यान रखेंगे, जरूरी नहीं है कि आपको 1 मीटर, 4 मीटर और 10 मीटर दिया जाए. द पोटेंशियोमीटर वायर में बी गिवन इन ए स्ट्रेच ऑफ 1 लेंथ ऑफ वायर. ओके, सो नेक्स्ट वी विल सी इट्स प्रिंसिपल. दैट जो हमारी कंडीशंस थी वो क्या थी, इफ ए कांस्टेंट करंट फ्लो थ्रू द वायर ऑफ पोटेंशियोमीटर of uniform area of cross section,
then potential drop across any length of wire is directly proportional to length of that portion of wire. Means सर्किट में अगर कांस्टेंट करंट फ्लो होती है और जो वायर है पोटेंशियोमीटर वायर, इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज यूनिफॉर्म, देन पोटेंशियल ड्रॉप across any length of wire, it is directly proportional to length of that portion of wire. Means जो potential drop है वो वायर की लेंथ के प्रोपोर्शनल है. सिंपल वर्ड्स में कहा जाए तो जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो किसके प्रोपोर्शनल है? इट इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ वायर. आप वायर की लेंथ जितनी ज्यादा लेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम ए, जैसे जैसे लेंथ इंक्रीज होती है, जैसे 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, जैसे जैसे लेंथ इंक्रीज होती है, पॉइंट ए के रेफरेंस में पोटेंशियल का डिफरेंस भी क्या होगा? इंक्रीज होगा. ए इज द स्टार्टिंग पॉइंट, दैट इज रेफरेंस पॉइंट. तो ए से आप किसी भी लेंथ पर जाएं तो लेंथ अगर ज्यादा होगी तो उस पर पोटेंशियल का ड्रॉप भी क्या होगा? ज्यादा होगा. ओके, फॉर एग्जाम्पल ए पॉइंट से 1 सेंटीमीटर पर जाएं, कुछ पोटेंशियल ड्रॉप है. ए से अगर हम 10 सेंटीमीटर पर जाएं, लेंथ 10 टाइम्स हो जाएगी तो पोटेंशियल ड्रॉप भी 10 टाइम्स हो जाएगा. सो पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ दैट पोर्शन ऑफ वायर. उस पोर्शन की लेंथ जितनी ज्यादा होगी, पोटेंशियल का ड्रॉप भी उतना ही ज्यादा होगा. नाउ हाउ कैन वी प्रूव इट? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर इज ए, रेजिस्टिविटी ऑफ वायर इज रो, L is the length of that portion. हम जिस पोर्शन को कंसीडर कर रहे हैं, सपोज इट्स लेंथ इज L. So what will be resistance of that length of wire? R is equal to rho L upon A. Rho is the resistivity, A is area of cross section, L is the length taken into consideration. Okay. According to Ohm's law, what is potential drop across L length? If it is V, then according to Ohm's law, V is equal to IR. I is as it is. What is R? R is rho L upon A. Now here you can see we are already assuming that current is constant, area of cross section is constant, resistivity is also a constant. So I rho upon A, इसको हमने assume किया है X which is a constant. So V is equal to XL. So from this expression, what is X? It is voltage upon length, potential drop per unit length. It means when X is a constant, we can say V is directly proportional to L. This is the working principle of potentiometer, that potential drop across any length of wire is directly proportional to length of that wire. लेकिन यहाँ पर दो conditions हैं, area of cross section must be uniform and current through the wire it should be constant. Okay, तो यहाँ पर दो चीजें constant है. Here X is called potential gradient, means potential drop per unit length, and it is a constant. Okay, length increase होगी, potential drop increase होगा, length decrease होगी, potential drop decrease होगा, but this ratio will remain constant. किसी भी potential को उस particular length से divide कर दें तो आपको potential gradient मिलेगा. Okay, unit of potential gradient is volt per meter, or it can be rewritten as Vm inverse. Now when voltage is directly proportional to its length, so if we draw a graph between voltage and length, it must be a straight line. तो इसका स्लोप क्या मिलेगा? जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है, इट इज स्लोप ऑफ वोल्टेज लेंथ ग्राफ. वोल्टेज और लेंथ ग्राफ का अगर मैं स्लोप कैलकुलेट करूं तो V अपॉन L मिलेगा. सो दिस इज X, मीन्स पोटेंशियल ग्रेडियंट. तो स्लोप ऑफ वोल्टेज लेंथ ग्राफ गिव्स पोटेंशियल ग्रेडियंट. Okay, next is what is the working of potentiometer? Now one thing which is you must be noted, that I have written everything in detail. It is not compulsory for you to write everything in examinations. Examination point of view से हमें कम लिखना है, ये सिर्फ understanding के लिए ही मैंने इतना explain किया है. Okay, so first of all, to work potentiometer as a device, we have to set up two circuits. किसी भी potentiometer में जब भी आप उसको कुछ भी किसी भी purpose से use करें, then it is compulsory for you to set up two circuits. One is primary or auxiliary circuit, and second is secondary circuit. Okay.
What is primary circuit? Primary circuit is used to provide potential gradient on potentiometer wire. हमने ये देखा कि एक्चुअली पोटेंशियोमीटर है क्या। आपने जो वायर ए बी लिया है इस पर पोटेंशियल पूरी लेंथ पर यूनिफॉर्म वे पर डिवाइड हो जाता है। जैसे जैसे लेंथ इंक्रीज होती है उसी के प्रोपोर्शन में पोटेंशियल ड्रॉप भी इंक्रीज होता है। आपके पास स्केल होता है, स्केल पर जैसे 1 सेंटीमीटर ऐड करते हैं आप देखते हैं पूरे स्केल पर 15 सेंटीमीटर मार्क रहते हैं। 1 से स्टार्ट करें, जैसे जैसे 1 सेंटीमीटर ऐड होता जाएगा लेंथ इंक्रीज हो जाती है, एट लास्ट यू फाइंड 15 सेंटीमीटर। सिमिलरली पोटेंशियल भी लेंथ पर डिवाइडेड रहता है और जैसे जैसे लेंथ इंक्रीज होती है तो पोटेंशियल ड्रॉप भी इंक्रीज होता है। यही सिमिलैरिटी है। So primary circuit is used to provide potential gradient on potentiometer wire. तो ये प्राइमरी सर्किट का काम सिर्फ पोटेंशियल ग्रेडियंट प्रोवाइड करना है। ये पोटेंशियल का स्केल है ताकि जैसे जैसे लेंथ स्केल इंक्रीज होगी उसी के अकॉर्डिंग पोटेंशियल भी ऐड होता जाएगा। इसमें क्या क्या होगा? इट कंटेन्स ए स्टैंडर्ड सेल, रियोस्टेट एंड ए की। इसमें ये तीन चीजें होंगी, स्टैंडर्ड सेल, रियोस्टेट एंड ए की। स्टैंडर्ड सेल का क्या काम है? स्टैंडर्ड सेल मस्ट प्रोवाइड ए कांस्टेंट करंट फॉर लॉन्ग टाइम। स्टैंडर्ड सेल का काम है कि ये लॉन्ग टाइम तक आपको एक कांस्टेंट करंट प्रोवाइड करें, क्योंकि ये कंपलसरी कंडीशन है। पोटेंशियोमीटर की एक कंपलसरी कंडीशन है कि करंट क्या होनी चाहिए? कांस्टेंट होनी चाहिए, और इसके लिए हम किसका यूज करते हैं? स्टैंडर्ड सेल का यूज करते हैं। ओके। सेकंड थिंग, वर्किंग के लिए जो मोस्ट कंपलसरी पार्ट है, द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस पोटेंशियोमीटर वायर VAB। आपने जब सेल लिया, अब इस सेल का EMF कितना होना चाहिए? इस सेल का EMF इतना लेंगे आप कि AB वायर के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस पोटेंशियोमीटर वायर VAB ड्यू टू स्टैंडर्ड सेल, इट मस्ट बी ग्रेटर देन पोटेंशियल डिफरेंस टू बी मेजर्ड। जो आपको पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है, जो अननोन पोटेंशियल्स हमें मेजर करना है, हमारे पास ए बी के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप हमेशा इससे ग्रेटर होना चाहिए, तभी हम पोटेंशियोमीटर को एज ए डिवाइस यूज कर सकते हैं। ओके, सो द वैल्यू ऑफ और EMF ऑफ स्टैंडर्ड सेल शुड बी चूजन इन सच ए वे दैट VAB इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन V अननोन। ओके, नाउ ये सर्किट है। Secondary circuit contains unknown source of EMF or potential difference to be measured. Secondary circuit में सिर्फ EMF होगा जो आपको मेजर करना है। ओके, सो यहाँ पर आप ध्यान रखें, पोटेंशियोमीटर में ना मैंने 1 वायर लिया है, ना 4 लिया है, ना 10 लिया है। जो भी लेंथ हो उसको मैंने एक सिंगल स्ट्रेच में शो किया है। सो फॉर सिंप्लिसिटी वी विल ड्रॉ पोटेंशियोमीटर विद 1 वायर इन स्ट्रेट सेटअप। एग्जाम में भी यही हो सकता है कि आपको एक सिंगल वायर दिया जाए, आप एक सिंगल वायर बना सकते हैं। इट इज नॉट कंपल्सरी फॉर यू टू ड्रॉ 10 वायर्स। ओके, सो यू कैन ड्रॉ ए सिंगल वायर। एग्जाम में कुछ भी हो, आप वर्ड को देखें, 1 मीटर और 10 मीटर और 4 मीटर से कुछ नहीं होता। वो सिंपल शो करने के लिए है ए से लेके बी तक ये लेंथ भी 10 मीटर पॉसिबल है। वो उसका एक प्रैक्टिकल सेटअप है कि अगर आप एग्जैक्टली लेबोरेटरी में परफॉर्म करते हैं, देन लेबोरेटरी में सिंगल सेटअप में 10 मीटर वायर पॉसिबल नहीं है। तो उसको एक लिमिटेड स्पेस में करने के लिए हम क्या करते हैं, वी जनरली फिट द 10 मीटर वायर ऑन ए वुडन बोर्ड in 10 parallel lengths. Okay, otherwise length is continuous. So this is primary circuit. You can see primary circuit, A is positive, B is negative. From A, standard cell is connected, a key, a rheostat and negative terminal. The resistance offered by rheostat is R dash and resistance of wire AB constant and एक resistance wire है. It will provide a resistance. Its resistance is R. अब देखिए A से जैसे जैसे लेंथ इंक्रीज होगी पोटेंशियल का ड्रॉप इंक्रीज होता है। देखिए लेंथ इंक्रीज हो रही है तो यहाँ पर पोटेंशियल का ड्रॉप भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। ओके, दिस इज सेकेंडरी सर्किट। ये सेल है, इसका EMF हमें मेजर करना है। सो पॉजिटिव टर्मिनल विद A पॉजिटिव, नेगेटिव से चलेंगे गैल्वेनोमीटर एंड ए स्लाइडिंग की विल टच ऑन दिस वायर। जहां भी आप टच करेंगे तो एक क्लोज्ड सर्किट बनेगा, A, J, G, E एंड A, और इस क्लोज नेटवर्क में हम किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ
अप्लाई करेंगे। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। व्हाट इज ईएमएफ ऑफ स्टैंडर्ड सेल? द ईएमएफ ऑफ स्टैंडर्ड सेल इज ई। रेजिस्टेंस ऑफ रियोस्टेट R dash. रेजिस्टेंस ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर इट इज R। टोटल रेजिस्टेंस कितना हुआ सीरीज में? R प्लस R डैश। अगर सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस गिवन है, सो वी कैन include that resistance also here by adding small r in series. Okay, so what is current in primary circuit? I is equal to voltage upon resistance, means E upon R plus R dash. If rheostat is not there, just remove R dash, then I will be equal to E upon R. Okay, so इस पूरे सर्किट में इस सेल के कारण I करंट फ्लो होती है। सो A से B के बीच में पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा? करंट हमें पता है, रेजिस्टेंस हमें पता है, सो वी कैन से पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस पोटेंशियोमीटर वायर AB, VAB is equal to IR. The value of I is E upon R plus R dash, and this R is as it is. What is total length of potentiometer wire? If it is capital L, then potential gradient X is equal to VAB upon L. Total potential drop is VAB, total length is L, so it is ER upon R plus R dash into L. So it can be in voltage per meter or voltage volt per centimeter also. तो आप अगर इस ग्राफ में, इस डायग्राम में A से स्टार्ट करें, जैसे जैसे लेंथ इंक्रीज होती है पर सेंटीमीटर कंट्रीब्यूट टू द पोटेंशियल, सो A से उस पर्टिकुलर पॉइंट तक पोटेंशियल, जैसे A से हम J तक अगर पोटेंशियल ड्रॉप लें, then it must be proportional to this length L. Okay, so potential gradient X is equal to VAB upon L, ER upon R plus R dash into L, volt per centimeter. Now अब हम secondary की बात करते हैं. Let we have to measure EMF of an unknown cell E. So it is connected in secondary circuit with positive terminal at A. It is compulsory. इस पोटेंशियल ड्रॉप का पॉजिटिव टर्मिनल A पर होना चाहिए. ए गैल्वेनोमीटर एंड ए स्लाइडिंग की इन सीरीज. इस सेल के साथ आप गैल्वेनोमीटर और स्लाइडिंग की को आप सीरीज में कनेक्ट करेंगे. नाउ व्हाट विल यू डू? वी स्लाइड जॉकी ऑन वायर AB by touching it at a point, and G shows deflection. Galvanometer shows deflection. Okay, now a closed loop is formed. कौन सा था? A J G E A. You can see A J G E A. यहां अगर हम किरचॉफ्स लॉ अप्लाई करें तो आप देखते हैं दो पोटेंशियल हैं. एक तो सोर्स ऑफ ईएमएफ है, A to J some resistance is there, and because of that resistance A और J के बीच में कुछ पोटेंशियल का ड्रॉप होगा. So according to Kirchhoff's law, EMF का सम और पोटेंशियल ड्रॉप का जो सम है वो हमेशा इक्वल होते हैं. Algebraic sum of EMFs is equal to algebraic sum of potential drop across resistance. So a closed loop is formed. So when potential drop across L length of wire is equal to unknown EMF E, then net current is in circuit becomes zero, and galvanometer shows zero deflection. L लेंथ कैसे मिलेगी? मैंने अभी बताया, आप जॉकी को स्लाइड करेंगे एंड यू विल फाइंड द पॉइंट वेयर गैल्वेनोमीटर शोज जीरो डिफ्लेक्शन. दिस बैलेंसिंग लेंथ इज L. तो आप ये बताएं, अभी इस रूल के अकॉर्डिंग अगर पर यूनिट लेंथ पर X पोटेंशियल है तो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस L लेंथ कितना होगा? X इंटू L. Algebraic sum of the EMF is E. Algebraic sum of the potential is XL. So E is equal to XL. So in this way unknown EMF is measured. Okay. Now ये तो बात थी कैसे मेजर करते हैं, लेकिन अगर आपकी की इस पॉइंट पर जीरो डिफ्लेक्शन पॉइंट से आइदर साइड में हो, मतलब अगर मैं इस जॉकी को यहां टच करूं या इस पॉइंट पर टच करूं, तब गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन कितना होगा? नाउ इफ यू टच एट ए पॉइंट ऑन लेफ्ट हैंड साइड, द लेंथ इज लेस देन बैलेंसिंग लेंथ, तो यहां पर पोटेंशियल का डिफरेंस कम होगा, ईएमएफ ज्यादा होगा. सो करंट विल फ्लो थ्रू दिस ईएमएफ. आप इस J से जितना दूर जाएंगे द वैल्यू ऑफ करंट विल
increase, but it will flow due to EMF E. Similarly, if you go on right hand side away from this balance point, again current will increase. Reason, if length is increasing, potential drop is also increasing. So if it is more than EMF applied, आपने जो EMF लगाया है ये इससे ज़्यादा हो जाएगा, तो ये पोटेंशियल ज़्यादा है, ये पोटेंशियल कम है, तो ऑब्वियसली पोटेंशियल का डिफरेंस होगा और उस पोटेंशियल डिफरेंस के कारण गैल्वेनोमीटर में करंट फ्लो होगी. ओके, सो आई हैव रिटन इट. ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए है. इफ वी टच J on either side of balancing point, then there will be some potential difference, hence current will flow in circuit. पहला पॉइंट लिया है एट ए पॉइंट ऑन लेफ्ट साइड ऑफ बैलेंसिंग पॉइंट. बैलेंस पॉइंट के लेफ्ट साइड में अगर हम देखें तो V की वैल्यू EMF से स्मॉल है, सो करंट विल फ्लो ड्यू टू सेल ऑफ EMF E. ये देखिए, ये फर्स्ट पोजीशन है ऑन लेफ्ट साइड, तो ये लेंथ कम हो गई तो यहाँ पर पोटेंशियल का ड्रॉप भी कम हो गया. सो नेट पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू E माइनस V. तो V इस लेंथ पर है, E अप्लाइड है, तो डिफरेंस इतना होगा. ओके, अगर हम राइट साइड में जाएं तो राइट साइड में जाने पर क्या होगा, एज लेंथ इज मोर हेंस पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस लेंथ V इज मोर. इस लेंथ पर जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है वो V होता है, इट इज मोर, सो EMF टू बी मेजर्ड, सो V इज ग्रेटर देन E. E की वैल्यू तो फिक्स है, हेंस करंट विल फ्लो इन सर्किट ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस V माइनस E. नाउ V ज्यादा है, E कम है, तो करंट की वैल्यू क्या होगी, V माइनस E होगी. ये पहले डिफरेंस E माइनस V था, अब ये V माइनस E है, सो करंट विल फ्लो इन ऑपोजिट डायरेक्शन. तो अब गैल्वेनोमीटर आपको ऑपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन शो करेगा. जब बैलेंस पॉइंट होता है तो वहां पर E की वैल्यू V के इक्वल होती है एंड V इज इक्वल टू XL, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस वायर. और जहां बैलेंस पॉइंट होता है वहां सर्किट में क्लोज लूप में नेट पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा, नेट करंट भी सर्किट में कितनी होगी, जीरो होगी. सो वी कैन से पोटेंशियल डिफरेंस वर्क्स ऑन null deflection principle as no current flow in circuit at balance point, hence it measure EMF or potential difference accurately. Okay, so that's all for today. आप इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लें. In next segment we will do some application part of this potentiometer.